Hello students, welcome to IIE. In this video, we are going to discuss about the properties of the Fourier transformation. So, let us go one by one. There are different properties, so many properties are there for the Fourier transformation. So, we will go one by one with some examples. So, the first property of the Fourier transformation comes as the first one, that is the area property. Sometimes this is also called as center ordinate property. Same thing but different name, that is center ordinate property. दोनों सेम चीज है बट अलग अलग नाम है कि either you call it as a area property or you can call it as a center ordinate property. So what does this center ordinate property depicts or the area property depicts? So for that purpose, let us take, suppose we have a signal xt, and if we do the Fourier transformation of this signal xt, then we will get capital X omega. We are assuming this, so let us say we are assuming this. Now, according to the area property, it can be written that the area under the xt क्या है, एक सिग्नल है टाइम डोमेन पे. So that means we can say that the area under the curve xt in time domain will be exactly equals to the value of capital X omega in the frequency domain at omega equals to 0. So this will give us the area property. मतलब इस xt के अंदर और xt के नीचे जितने एरिया होंगे in the time domain, that area will be equals to the value of x omega at omega equals to 0. So this is the statement of the area property, or you can say that the area under the curve in the one domain is equals to the value of the function in the another domain at omega equals to 0 or at origin. तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले इक्वेशन से कि मेरा जो xt है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, x ओमेगा. सो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओमेगा. सो x ओमेगा का इक्वेशन क्या था, x ओमेगा का इक्वेशन था एक. सो x ओमेगा का जो इक्वेशन था, इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन, इट वाज x ओमेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, और यहाँ पे क्या होता था xt, यहाँ पे xt होते थे, और इसके साथ क्या होता था e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t इंटू डी टी, ये वाला था. सो नाउ, so what was this? This was the kernel or the basis of the equation. So ये मेरा Fourier transform of the xt है जो कैपिटल x ओमेगा है. Now if we want to find the value of x at omega equals to 0, what we need to do? We have to put omega equals to 0 in this equation. So यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जैसा है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट, और यहाँ पे xt था, e टू दी पावर j, यहाँ पे माइनस j 0 हो जाएंगे तो e टू दी पावर 0 मतलब 1, तो अल्टीमेटली यहाँ पे dt. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x0. सो दैट मीन्स वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x0 एज x0 इज गिवन बाय इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल xt इंटू
dt. So this x0 क्या देंगे आपका x ओमेगा at omega equals to 0 मतलब x0. So x0 will give us the area under the curve. So this is nothing but the area under the curve, that is we can say area under the curve xt at time domain. So in this way we can find the value of x0. Now also let us take an question on this. Suppose if I ask you, I am taking a question. So if I ask you कि what will be the unit of xf. Let us take this question for you. So what will be the unit of xf if x of t is in वोल्ट? सिंपल सा क्वेश्चन है. अब सोचिए कि आपका xf का यूनिट चाहिए अगर मेरा xt वोल्ट में है. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन xt एंड xf? xt और xf दोनों आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पेयर है. फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पेयर. So let us think how to find this. Now ये जो xf है, ये xf क्या है? xf is the Fourier transformation of this xt. So that means we can write, we know the x omega value. So let us first write the x omega value. x omega value क्या है? ये वाला. So that is integration minus infinite to plus infinite टाइम डोमेन सिग्नल xt इंटू e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t इंटू dt. अब मुझे xf चाहिए. xf का मतलब क्या है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ xf. सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f. ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, वी नो दैट. सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, यहाँ पे होगा आपका xt e टू दी पावर माइनस j 2 पाई f इंटू t इंटू dt. अब सोचो ये जो x t है, ये वाले सिग्नल, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है वोल्ट. ओके. एंड ये क्या है? दिस इज द कर्नेल. ये आपका कर्नेल है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है. कर्नेल, we have already discussed this in the introductory part of the Fourier transformation. Now इसका यूनिट क्या है? ये वाले पार्ट का, this is nothing but second or time, so we can say second. So what will be the unit of this xf? इस xf का यूनिट क्या होगा? It can be written as volt second, or you can say it as volt per hertz, because hertz means 1 by second. So ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे वोल्ट सेकेंड हो जाएगा. So this will be the unit. So this is the answer. ये आपका आंसर हुआ. So इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेमिस्टर में आ सकता है. Now let us take another one question. Let us take another one question on this property. So ये एरिया प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा.
Now let us take this question, and this question has already came in the MACOUT semester examination. So question क्या है, एक xt given है यहाँ पे एक xt given है. The xt looks like this, and we have to find the value of x0. Question number A. Question number B, integration minus infinite to plus infinite x omega d omega. Now let us first solve the question number A. So in the question number A, we have been asked to find the value of x0, capital X0. That means इसका मतलब है capital X at omega equals to 0. So capital X at omega equals to 0 का जो value होंगे, that value is nothing but equals to the area of xt, और xt given है. So that means we can here write the area of xt. So area of xt क्या होगा? So let us find that. So area of xt जो है, ये पूरा आपका एक रेक्टेंगल जैसा है. उस रेक्टेंगल से ये ट्रायंगल वाला पोर्शन आपका नहीं है. So let us first write the total area of this rectangle. So यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट. So 4 into ब्रेथ कितना है 2 माइनस ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितना है 1, so 1 यहाँ पे. So that means 4 into 2 is 8, 2 cancel, so 1, so 8 minus 1 is 7. So you can see that x0 is the value of x0 का जो value होगा वो 7 होंगे. This will be the value of x0. So in this way, by using the area property, you can directly find the value of the capital X omega at omega equals to 0, area of the xt. Now let us go for the B question. अब B question पे देखिए, B question में मुझे क्या ढूंढना है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फानाइट कैपिटल X ऑफ ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ये वाला वैल्यू मुझे चाहिए फ्रॉम दिस डेटा. नाउ इफ यू रिमेंबर the inverse Fourier transformation. So what was the inverse Fourier transformation? So from inverse Fourier transformation. So from inverse Fourier transformation, we know that xt is equals to 1 by 2 pi integration minus infinite to plus infinite, और यहाँ पे होंगे आपका कैपिटल X ओमेगा, उसके साथ e to the power j ओमेगा इंटू t इंटू डी ओमेगा. ये वाला था आपका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ सपोज इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x at 0, so let us find the x at 0, that is 1 by 2 pi integration minus infinite to plus infinite कैपिटल x ओमेगा e to the power 0, यहाँ पे मतलब 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा d ओमेगा. So, ये जो इक्वेशन मेरे पास आया अभी, ये वाला इक्वेशन, लुक एट दिस इक्वेशन वेरी वेरी क्लोजली. मुझे क्या ढूंढना है, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट एक्स ओमेगा डी ओमेगा, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ये वाला वैल्यू चाहिए. तो ये 2 पाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस 2 पाई हियर. सो दैट मीन्स आई कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन माइनस इन्फानाइट to plus infinite capital X omega d omega 2 pi into x0 मैं लिख सकता हूं. अब ये x0 का वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ xt at t equals to 0. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इसका मतलब है वैल्यू ऑफ xt at t equals to 0. नाउ xt का ग्राफ गिवन है, यहाँ पे t equals to 0, व्हाट इज द वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 बिठा दीजिए. दैट मीन्स x0 का वैल्यू आपके लिए हो जाएंगे 2 पाई इंटू 2, दैट इज 4 पाई. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इज दिस, दैट यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ दिस. अदरवाइज वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, यू हैव टू डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और इंटीग्रेशन आपको कोई करना ही नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी यूज करना है. प्रॉपर्टी यूज करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी, व्हिच हैज ऑलरेडी केम इन द मैकआउट एग्जामिनेशन.
Similarly, this is another answer of question number 8. So this type of question you can expect that can come from directly from the properties of the Fourier transformation. So this was our first property. Now we will go for the second property. Now let us see the linearity property. This is the second property. So the name of the property right now is the linearity property. What is linearity? So now we are going to discuss about the linearity property. So what does this linearity property tells? The linearity property के according, suppose we have a signal x1t. Suppose this is a time domain signal and the Fourier transformation of this time domain signal is suppose x1 omega. Similarly, let us say another signal x2t and the Fourier transformation of this signal is x2 of omega. So ये हमने assume किया कि x1 मेरा एक टाइम डोमेन सिग्नल है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका x1 ओमेगा है, x2 इज अनदर टाइम डोमेन सिग्नल जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा x2 ओमेगा है. नाउ लेट अस से इफ वी वांट टू फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 of suppose x1 t into an arbitrary constant capital A. So A is an arbitrary constant. It can be real, it can be complex. So A into x1t plus B is also another arbitrary constant and B into x2t. अब आपके पास क्या है? अब आपके पास ये वाले सिग्नल है. So we have a signal right now A into x1t plus B into x2t. Now what will be the Fourier transformation of this signal? इसका Fourier transformation क्या होगा? So आप देख सकते हैं यहाँ पे एक arbitrary constant है, यहाँ पे भी arbitrary constant और उसके साथ यहाँ पे आपका addition किया गया है. So now ये addition भी हो सकता है, ये आपका सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम, लिनियरिटी का मतलब आपको मालूम है कि इसके अंदर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम आएगा और होमोजेनिटी थ्योरम आएंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द फूरियर सीरीज. नाउ इफ वी डू द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल दैट कम्स फ्रॉम द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. So according to the linearity property, the Fourier transformation of this signal will be A, that is the arbitrary constant. x1 के लिए मेरा Fourier transformation क्या था? कैपिटल x1 ओमेगा. सो यहाँ पे आएंगे कैपिटल x1 ओमेगा, फिर प्लस, फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैपिटल B, उसके साथ x2 का Fourier ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज द कैपिटल x2 ओमेगा. So this equation or this is the Fourier transformation of this signal, composite signal. ये composite signal आपके कैसे आया? According to the superposition theorem and the homogeneity theorem. So कौन से theorem हमने use किया? यहाँ पे इसके अंदर just for your information I am writing this because we have already discussed about this linearity, that is it is a combination of superposition theorem plus homogeneity theorem. Homogeneity theorem, ये दोनों थ्योरम को एक साथ अगर डालेंगे तो हो जाएंगे आपका लिनियरिटी प्रॉपर्टी. सो ये हुआ आपका लिनियरिटी प्रॉपर्टी. दैट मीन्स इफ यू हैव टू सिग्नल्स और इफ यू हैव मल्टीपल सिग्नल्स और इंडिविजुअल सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो उस सिग्नल्स के जो लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे उस लीनियर कॉम्बिनेशंस का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको मालूम होगा अकॉर्डिंग टू द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस लिनियरिटी प्रॉपर्टी. सो इफ वी टेक एन एग्जांपल, सो एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल. Example, suppose we have a signal xt is equals to e to the power minus a mod t.
सो xt into e to the power minus a mod t into u of t. So we have to find the Fourier transformation of this signal. So the question is find the Fourier transformation of the given signal. गिवन सिग्नल का मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब देखो, इसको मैं डायरेक्टली फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं। अब मैं डायरेक्टली फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करूंगा। क्या करना है, मुझे ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये वाले सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट विल डू, ये जो मेरा मॉड टी है, सो इफ यू लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉड टी। सो ये जो मॉड टी है, इस मॉड टी का जो वैल्यू होगा इट विल बी टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 और मॉड टी का जो वैल्यू होंगे फॉर टी लेस देन 0 इज माइनस टी। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मॉड टी। नाउ इसी वाले डेफिनेशन को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। सो नाउ इफ आई वांट टू डिफाइन एक्स टी, so let us define xt for t greater than 0. So if we want to define xt for t greater than 0, that means e to the power minus a। अब mod t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो रहा है, t। सो यहाँ पे सिर्फ ut हो, e to the power minus at हो जाएंगे और उसके साथ u of t इज पॉजिटिव, सो ये वाले वैल्यू आएगा। Similarly, if we want to find the value of xt for t less than 0, so what will be the equation of xt? So e to the power minus a। अब mod t का वैल्यू t लेस देन 0 के लिए माइनस टी, यहाँ पे अगर माइनस टी आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे e to the power at और यहाँ पे आएंगे e to the power माइनस t इक्वल्स टू कितना है, t लेस देन 0। सो t लेस देन 0 के लिए u ऑफ माइनस टी। सो what you can see, we have got a signal like this. We have got a signal like this for different values of t. Now इसी सिग्नल को मैं एक साथ लिख सकता हूं, कैसे? So t greater than 0 के लिए मैं लिख सकता हूं e to the power minus at into u of t प्लस उसके साथ मैं लिख सकता हूं e to the power at into u of minus t. So this will give us the total signal. This will give us the total signal e to the power minus a mod t. Now अब देखो, आपके पास दो सिग्नल्स है। कौन सा सिग्नल? पहला सिग्नल है ये वाला सिग्नल। So let us assume this is the x1t and this one is x2t. सो आपके पास दो सिग्नल्स है। अब मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करूंगा। लीनियर अकॉर्डिंग टू द लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, मुझे अगर x1 और x2 का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मालूम है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूं। अब देखो, ये जो x1t है ये क्या है, e to the power minus at into ut. नाउ we can say that the Fourier transformation of this x1t, ये वाला, ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मालूम है क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सपोज लेट अस से x1 ओमेगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1 ओमेगा? सो x1 ओमेगा इज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द x1t एंड द वैल्यू विल बी 1 by a plus j omega. Similarly, we can also find the Fourier transformation of this x2t. सो इसका अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में निकालता हूं तो e टू दी पावर प्लस at u ऑफ माइनस टी, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या आएंगे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा दैट विल बी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होंगे। सो दैट मीन्स लेट अस से दैट x2 ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 by a minus j ओमेगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गया, ये वाला दोनों वैल्यू। अब ये दोनों क्या है, x1 प्लस x2। सो नाउ आपके पास जो सिग्नल है, आपके पास जो सिग्नल है दैट इज xt, दैट इज नथिंग बट x1t
plus x2t. Now you know the Fourier transformation of x1t, you know the Fourier transformation of x2t. So ये वाले सिग्नल का जो Fourier transformation होगा, let us say that is x ओमेगा. अब x ओमेगा क्या होता है? x1 ओमेगा a इंटू x1 ओमेगा b इंटू x2 ओमेगा. अब a b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे a b का वैल्यू 1 है. So that means we can say it will be x1 of omega plus x2 of omega. So what is the value of x1 omega? So x1 omega का वैल्यू है 1 plus a plus j omega plus 1 by a minus j omega. Now if you do the minimization तो यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे आएगा a प्लस j ओमेगा, यहाँ पे आएंगे a माइनस j ओमेगा. अब इसके ऊपर जाएंगे a माइनस j ओमेगा प्लस a प्लस j ओमेगा. यहाँ से j ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ऊपर में आपका पास रहेगा न्यूमरेटर पे आपका a स्क्वायर और नीचे में क्या होंगे a प्लस बी a माइनस बी. दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर. अब j ओमेगा का स्क्वायर मतलब j स्क्वायर मतलब -1 तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो दैट मीन्स ये जो सिग्नल है xt दैट इज e टू द पावर -a ऑफ mod t -a ऑफ mod t ये वाला जो वैल्यू है इनटू ut, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा that value will be a square divided by a square plus omega square. अब देखिए सॉरी यहाँ पे एक गलत हुआ है कि यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे तो a स्क्वायर नहीं होंगे, ये मैंने मिस्टेक से मल्टीप्लाई किया था, ये 2a होंगे तो यहाँ पे 2a होगा. So that means in this way you can find the Fourier transformation of a composite signal. composite signal है, ये composite signal का Fourier transformation मैंने कैसे निकाला? We have found the Fourier transformation using the linearity property. So this is how we can find we can use the linearity property to find the Fourier transformation of a composite signal using the superposition theorem and the homogeneity theorem. Now we will go for the third property. The third property that we are going to see for the Fourier transformation, that is called as the duality property. So let us see the third property. The third property is the duality property. Sometimes this duality property is also called as the symmetry property. It is also termed as the symmetry property of the Fourier transformation. So what does this duality property of this Fourier transformation depicts? So let us see that. So for that, let us assume that we have a signal xt in the time domain. So if we assume that we have a signal xt in the time domain and the Fourier transformation of this signal xt is capital X of omega. We know this. Now, according to the duality property, suppose
according to this duality property, if we want to find the Fourier transformation of capital X t, यहाँ पे जहां पे ओमेगा था उस ओमेगा की प्लेस में मैं अगर टी बिठाता हूं तो जो फंक्शन आएंगे उसी को मैंने बोला कैपिटल एक्स टी. द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल कैपिटल एक्स टी विल बी 2 पाई स्मॉल एक्स, मतलब ये वाला फंक्शन, और टी के प्लेस में मुझे माइनस ओमेगा बिठाने होंगे. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो मैंने क्या बोला, सपोज वी हैव अ सिग्नल एक्स टी, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैपिटल एक्स ओमेगा होता है. अब इस कैपिटल एक्स ओमेगा के फंक्शन के अंदर मेरा जहां पे ओमेगा है उस प्लेस पे मैं अगर टी बिठाता हूं तो जो टाइम डोमेन फंक्शन होंगे उस टाइम डोमेन फंक्शन का अगर मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए दैट विल बी 2 पाई इनटू दिस टाइम डोमेन फंक्शन, जहां पे मेरा टी है जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे मुझे माइनस ऑफ ओमेगा बिठाने होंगे. सो दिस इज द डुअलिटी प्रॉपर्टी, वन फॉर्म ऑफ द डुअलिटी प्रॉपर्टी. सो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म ओमेगा के रिस्पेक्ट पे है. नाउ इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस डुअलिटी प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ linear frequency f, then we can write that if we have a signal xt और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ft अगर कैपिटल X ऑफ f होते हैं, कैपिटल X ऑफ f, then the Fourier transformation of capital XT will be written as according to this duality property, and that will be the small x, और जहां पे मेरा t है उस पोजीशन पे मुझे माइनस f बिठाने होंगे. So this is the duality property in the linear frequency scale, and this is the duality property in the angular frequency omega. Now ये तो था मेरा थियरम, ये वाला मेरा था थियरम और थियरम का प्रॉपर्टीज का थियरम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. दैट एग्जांपल्स विल हेल्प यू टू प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग, इनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डुअलिटी प्रॉपर्टी. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस से फर्स्ट example number 1. So in this example number 1, let us assume that there is a question like this, कि find the Fourier transformation of a signal given by 1 by a plus j t. So what will be the Fourier transformation of the signal 1 by a plus j t? Now इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको डुअलिटी प्रॉपर्टी का जरूरत होगी. कैसे? देखिए, 1 बाई ए प्लस जे टी के अगर मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, दैट मीन्स मेरे पास जो एक्स टी है उस वाले एक्स टी सिग्नल क्या है? 1 बाई ए प्लस जे टी. अब इसका मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ यू ऑल नो दैट ये वाले t के जगह पे मैं अगर ओमेगा बिठाता हूं तो इट विल बी 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा. सो वी नो दैट देयर इज अ सिग्नल इन अ टाइम डोमेन दैट इज e टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी. ये जो मेरा टाइम डोमेन सिग्नल है, इस टाइम डोमेन सिग्नल का अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालता हूं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन what will be the Fourier transformation? It will be 1 by a plus j omega. So मेरे पास अभी मैंने देखा कि मेरे पास अगर e टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू टी होता है टाइम डोमेन पे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे मेरा हो जाएंगे 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा. और अकॉर्डिंग टू द डुअलिटी प्रॉपर्टी मुझे मालूम है x कैपिटल X ओमेगा बोल के जो फंक्शन आ रहा है दैट इज दिस वन. सो मैं बोल सकता हूं दिस इज
the capital X of omega and this one is the xt. अब इस ओमेगा के प्लेस में मैं अगर t बिठाता हूं तो ये वाला फंक्शन आएंगे. सो दैट मीन्स यू कैन सी दैट if I replace this omega by t, so I will get a signal 1 by a plus j into t. तो ये क्या हुआ? कैपिटल xt. So this is nothing but capital X of t, because capital X of omega was 1 by a plus j omega and capital X of t मतलब ओमेगा के प्लेस में जस्ट t बिठाइए. तो ये वाला दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होंगे? 2 पाई में लिख रहा हूं यहां पे 2 पाई, उसके साथ x ऑफ माइनस ओमेगा. तो xt क्या था? xt ये वाला था. सो दैट मीन्स e टू द पावर माइनस a और t के प्लेस में मुझे क्या बिठाने होंगे? माइनस ऑफ ओमेगा. सो माइनस ऑफ ओमेगा और u ऑफ माइनस ओमेगा. So u of minus omega. So this will be the Fourier transformation. So if I simplify this, what we can write? तो यहाँ पे मेरा 2 पाई e to the power minus minus plus, so only a omega u of minus omega. So this will give us the Fourier transformation of this signal. So in this way you can see that ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को मैं डायरेक्टली फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था, बट उसके लिए मुझे बहुत सारे मैथमेटिक्स करने होते थे, बहुत इंटीग्रेशन करना होता था. बट विदाउट डूइंग दैट मैथमेटिक्स, जस्ट बाय यूजिंग द डुअलिटी प्रॉपर्टी, वी हैव फाउंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल 1 by a plus j into t. नाउ लेट अस टेक, ये था एक एग्जांपल. नाउ लेट अस टेक अनदर वन एग्जांपल. सपोज the example number 2. So in this example number 2, let us find the Fourier transformation of a signal xt is equals to 2a by a square plus t square. 2a by a square plus t square where a is an arbitrary constant. Now इसको सॉल्यूशन करने के लिए फिर से हम लोग डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. कैसे? अब देखो, यहां पे जो आपका xt है, यहां पे जो सिग्नल आपका xt है, दैट इज 2a बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. अब इस t के प्लेस में इफ आई रिप्लेस दिस t बाय ओमेगा तो क्या आएंगे? सो 2a बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो ये जो सिग्नल मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आया, इस वाले सिग्नल कहां से आते हैं? वी नो दैट इफ वी हैव अ टाइम डोमेन सिग्नल लाइक दिस, e टू द पावर माइनस a इंटू टी इंटू यू टी, इसका अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूंगा, देन आई विल गेट दिस सिग्नल. ये वाले सिग्नल मुझे मिलेंगे. दैट मीन्स, सो ये मेरा अभी xt है. सो xt मेरा कौन है? अभी मेरा xt है ये वाला. ये वाला क्या है? दिस इज द कैपिटल X ऑफ ओमेगा. तो मुझे क्या ढूंढना है? आई हैव टू फाइंड द कैपिटल X ऑफ t, बिकॉज इफ वी रिप्लेस दिस ओमेगा बाय t, देन आई विल गेट दिस फिक्स्ड सिग्नल. सो आई कैन से दैट इट विल बी 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. अब इस वाले सिग्नल को मैं अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म करता हूं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट 2 पाई इंटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा. अब xt क्या था? xt ये वाला था. सो दैट मीन्स यहाँ पे होंगे एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, मतलब जहां पे t था वहां पे माइनस ओमेगा, मतलब यहाँ पे माइनस ओमेगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा. सो ये आएंगे e टू द पावर माइनस a ऑफ minus omega into u of minus omega. So you can see I can minimize this by 2 pi e to the power यहाँ पे था माइनस ओमेगा, यहाँ पे है मॉड ऑफ माइनस ओमेगा. ये वाला मॉड होंगे आपका, क्योंकि यहाँ पे मॉड था, ये वाला मॉड था.
तो यहाँ पे मॉड आएंगे और यहाँ पे होंगे u ऑफ माइनस ओमेगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल 2a by a square plus t square and the Fourier transformation value will be this one. ये आपका Fourier transformation value है. So these are the two examples that we have done to understand the duality property. Now we will go for the fourth property. Now let us see the fourth property of the Fourier transformation. So the fourth property known as fourth one is the time reversal property. Time reversal property. So what is time reversal property of Fourier transform? So for that purpose, let us assume that we have a signal xt and we know the Fourier transformation of this signal xt is the capital X of omega. We know this because xt is known and x omega is also known to us. Then if we want to find the Fourier transformation of x of minus t. So मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइम रिवर्सल किया, तो इसका Fourier transformation आपको अगर ढूंढना है तो आपको टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी जाना चाहिए. So according to the time reversal property, if we want to find the Fourier transformation of x of minus t, it will be simply as x of minus omega. Simple as that. Now, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, यूज करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स पे. तो उस एग्जांपल्स करने के बाद आपको इस टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा. सो लेट अस टेक the first example. So first example क्या है कि example number one. So example number one पे let us take the first example as e to the power. Suppose we have a signal e to the power minus at into ut. ये वाले सिग्नल आपके पास है. You can see it is in the time domain signal, so that means it is a xt signal. Now आपको अगर मैं पूछूं कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है. क्या होगा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन? इट विल बी 1 by a plus j omega. Now if I right now ask you what will be the Fourier transformation of e to the power at into u of minus t. If I want to find the Fourier transformation of this signal right now, so what will be the Fourier transformation? You have to use this time reversal property. क्योंकि यहाँ पे आपका xt ये वाला था, यहाँ पे मैंने क्या किया, t equals to minus t पुट किए, that means x of minus t. So that means you can see that ये अगर मेरा x of t होंगे तो ये क्या है, x of minus t, because यहाँ पे t equals to minus t पुट कीजिए, e to the power at हो जाएंगे और t equals to minus t पुट करने से ut u of minus t हो जाएगा. तो इसके लिए मेरा जो अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म होंगे, दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी नथिंग बट कैपिटल x ऑफ माइनस ओमेगा. मतलब ये अगर x ओमेगा है तो ओमेगा के प्लेस में मुझे सिर्फ माइनस ओमेगा पुट करना है, एंड यू कैन फाइंड दैट इट विल बी a 1 by a minus j omega, सिर्फ ओमेगा को माइनस पुट किया. सो वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट यू कैन फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x ऑफ माइनस t का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं. सो लेट अस टेक अनदर वन एग्जांपल. सो एग्जांपल नंबर 2. अब देखिए, सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ut. ut का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? The Fourier transformation of this unit step signal is very simple. We have already done that. That is 1 by j omega plus pi into del of omega. So this is a very well-known Fourier transformation of unit step function. Now suppose if I want to find the Fourier transformation of
u ऑफ माइनस टी। आपको अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ माइनस टी, तो ये था मेरा xt, ये क्या है x ऑफ माइनस टी। दैट मीन्स वी नीड टू अप्लाई द टाइम रिवर्सल। अकॉर्डिंग टू द टाइम रिवर्सल x ऑफ ओमेगा अगर है यहाँ पे तो x ऑफ माइनस ओमेगा होंगे u ऑफ माइनस टी के लिए। सो जहां जहां पे आपका ओमेगा है वहां पे माइनस ओमेगा पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे पाई इंटू डेल ऑफ माइनस ओमेगा। सो दिस ओमेगा विल कम इन द आउटसाइड, सो ये हो जाएंगे माइनस जे ओमेगा और ये होंगे पाई। अब डेल ऑफ माइनस ओमेगा, डेल ऑफ माइनस ओमेगा के बारे में सोचिए। डेल ऑफ माइनस ओमेगा, डेल ऑफ माइनस ओमेगा इज नथिंग बट डेल ऑफ ओमेगा। हम लोग जब यूनिट इंपल्स फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे तो ये वाला डिस्कस किया था, यू डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ टी। सो यहाँ पे डेल ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल ऑफ ओमेगा। सो आई कैन रिप्लेस दिस डेल ऑफ माइनस ओमेगा बाय डेल ऑफ ओमेगा। So in this way we can find the Fourier transformation of u of minus t. Now let us take a very important question which came in the MACOUT semester, that is what will be the inverse Fourier transformation of u omega. So question क्या था? Question मैं पहले लिख रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका MACOUT एग्जामिनेशन में आया था सेमिस्टर में कि find the inverse Fourier transformation of u of omega, और ये वाला क्वेश्चंस आपका मैकआउट में आया हुआ था, मैकआउट में सेमिस्टर में आया हुआ था। very important question. So let us solve this question. So if I do the solution of this question, I will use this time reversal property. टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, एज वेल एज हम लोग डुअलिटी प्रॉपर्टी एक साथ यूज करेंगे। कैसे? जैसे देखिए, वी नो दैट यूटी क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इस यूनिट स्टेप फंक्शन के अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डालता हूं, सो व्हाट विल बी द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन? अभी मैंने लिखा, सो 1 बाई जे ओमेगा, इसको आपको याद रखना है। यूटी का फूरियर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए e टू द पावर at इंटू e टू द पावर माइनस at इंटू यूटी, e टू द पावर at इंटू यूटी, e टू द पावर माइनस a ऑफ मॉड टी। ये सारे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। ये पर्टिकुलर फंक्शंस के फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा, नहीं तो आपको डिराइव करने होंगे सेमिस्टर में और आपका बहुत ही टाइम जाएगा। सो बेटर है आप याद रखिए कि यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1 बाई जे ओमेगा प्लस पाई ऑफ डेल ओमेगा, पाई ऑफ डेल ओमेगा। ये वाला एक वेल नोन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डुअलिटी प्रॉपर्टी, नाउ इफ आई यूज द डुअलिटी प्रॉपर्टी, सो व्हाट विल यूज? यूजिंग द डुअलिटी प्रॉपर्टी। अभी इसके पहले ही मैंने किया था डुअलिटी प्रॉपर्टी। सो इफ वी यूज द डुअलिटी प्रॉपर्टी देन वी कैन से दैट ये क्या था? कैपिटल एक्स ओमेगा। तो मुझे क्या चाहिए? कैपिटल एक्स टी। मतलब जहां जहां पे मेरा, यहां पे देखिए कि पहले मेरा ये वाला क्या था? दिस वाज स्मॉल एक्स टी। व्हाट वाज दिस? दिस वाज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। अब according to the duality property, what we can say that capital X of t, that means जहां पे मेरा ओमेगा है वहां पे मैं t बिठाऊंगा। So that is 1 by j into t plus pi into del t। इसका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, so if I do this Fourier transformation, so what will be the Fourier transformation? We know that the Fourier transformation will be 2 pi into x of minus omega according to the duality theorem. So it will be 2 pi into x of minus omega, मतलब यहाँ पे u of minus omega।
ये हुआ। सो नाउ ये कहां से आया? डुअलिटी प्रॉपर्टी से। अब देखो इस डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद इफ आई यूज द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, सो अब मैं क्या यूज कर रहा हूं कि यूजिंग द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। कहां पे? इस वाले इक्वेशन पे। सो इस वाले इक्वेशन पे मैं अगर टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये हो जाएंगे कैपिटल एक्स ऑफ माइनस टी। दैट मीन्स जिस जिस पोजीशन पे मेरा टी है उस पोजीशन पे मुझे माइनस टी बिठाने होंगे। दैट इज 1/j ऑफ माइनस टी प्लस पाई डेल ऑफ माइनस टी। तो ये वाला सिग्नल आ जाएगा। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। सो नाउ इफ आई वांट टू डू द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल राइट नाउ, तो मेरा ये वाले जो फूरियर ट्रांसफॉर्म थे उस जगह पे ओमेगा पे प्लेस में मुझे माइनस ऑफ ओमेगा पुट करने होंगे। दैट मीन्स इट विल बी 2 पाई u ऑफ ओमेगा ओनली। Okay, so now we have got the Fourier transform of this, but according to the question मुझे Fourier transformation चाहिए u of omega का। So u of omega का Fourier transformation मुझे चाहिए तो इस 2 पाई को यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इसको मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। So that means I can say that it will be 1/2 pi into 1/-j into t प्लस पाई। अब डेल ऑफ माइनस टी का क्या होगा? अभी अभी मैंने बोला था कि डेल ऑफ माइनस ओमेगा इक्वल्स टू डेल ओमेगा, डेल ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू डेल टी। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द यूनिट इंपल्स फंक्शन इन द टाइम डोमेन, ये प्रॉपर्टी था। सो डेल ऑफ टी। अब यहां पे क्या होंगे? यहां पे आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू ओमेगा। सो अब देखिए ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये मेरा टाइम डोमेन। सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ढूंढना है। सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होंगे? ये वाला होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है? माइनस जे। सो दिस इज द इनवर्स फूरियर और इट इज द टाइम डोमेन सिग्नल जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? मेरा जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा यू ओमेगा। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u omega will be 1/2 पाई और यहां पे होंगे -1/j इंटू टी प्लस पाई इंटू डेल ऑफ टी, ये वाला आएगा। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस यू ओमेगा। अब देखो इस यू ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो डायरेक्ट फॉर्मूले थे उससे निकाल सकते थे, बट वहां पे क्या होता था? बहुत सारे इंटीग्रेशन करने पड़ते थे और मैथमेटिक्स आता था, कॉम्प्लेक्स कुछ मैथमेटिक्स, बट वी हैव स्किप दैट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेशन बाय यूजिंग टू प्रॉपर्टीज हियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द डुअलिटी प्रॉपर्टी, ये वाले डुअलिटी प्रॉपर्टी हम लोग यूज किया। उसके बाद जो आंसर आया डुअलिटी प्रॉपर्टी के बाद उसके ऊपर हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज किया, फिर आ गया। सो इन दिस वे वी कैन स्किप द मैथमेटिक्स और वी कैन स्किप द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फूरियर ट्रांस। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विल गो फॉर द फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म। So the fifth property, name of the fifth property is the scaling property. Scaling property. The scaling property जो है ये दो तरीके का हो सकता है, क्योंकि अब देखो कि according to the Fourier transformation क्या होता है कि if we have a signal xt in the time domain and if we want to do the Fourier transformation of this signal xt according to the definition of the Fourier transform, we will get a signal in the frequency domain, that is capital X of omega. So now
you can see that this xt is in the टाइम डोमेन, ये टाइम डोमेन का सिग्नल है। और ये जो कैपिटल एक्स ओमेगा है, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी है, ये कौन से डोमेन का है? ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन का, फ्रीक्वेंसी डोमेन। नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट द स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म, वी कैन डू द स्केलिंग in the time domain as well as we can do the scaling in the frequency domain. So that means ये जो scaling property है, ये scaling property का दो पार्ट होगा, दो पार्ट। We can have two type of scaling in the case of Fourier transform. So the first scaling is the time scaling property. Time scaling property. The second one can be the frequency scaling. Two types of scaling हो सकता है। अब टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? अब टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि सपोज इफ वी हैव अ सिग्नल xt and if we know the signal Fourier transformation is capital X of omega, then what will be the Fourier transformation of small x at, and where a is the scaling parameter? A ये क्या है? This a is the scaling parameter. This is the time scaling property, मुझे ये चाहिए। Similarly, if we think about the frequency scaling, for that purpose, if we have a signal xt and if we know the Fourier transformation of this signal xt is capital X omega, then what will be the inverse Fourier transformation of capital X a omega, where the a is the scaling parameter in the frequency domain. So this is the motive. मुझे यहाँ पे x of at का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और मुझे कैपिटल X ऑफ a ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये आएगा मेरा फ्रीक्वेंसी स्केलिंग से और ये वाला आएंगे मेरा टाइम स्केलिंग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ at विल बी रिटन एज 1 by mod of a। a क्या है? ये वाला स्केलिंग पैरामीटर। सो mod of a कैपिटल X ओमेगा by a. So this will give us the Fourier transformation of x of at. Similarly, if we talk about the inverse Fourier transformation of capital X a omega, the inverse Fourier transformation will be 1 by mod a into x of t by a. So this is the property, ये मेरा प्रॉपर्टी है। अब इस वाले प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरीके से देखिए। तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास अगर x ऑफ a t है, इफ वी वांट टू फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x ऑफ a t, देन वी हैव टू यूज द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट विल बी 1 by mod a capital X omega by a. Similarly, if we want to find the inverse Fourier transformation of capital X a omega, where a is the scaling parameter in the frequency domain, then we can say it according to this frequency scaling, it will be 1 by mod a x of t by a. These are the two properties. The most important thing to note here,
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ सपोज मान लीजिए कि इफ माई स्केलिंग पैरामीटर, ये जो ए है स्केलिंग पैरामीटर, इफ द स्केलिंग पैरामीटर इज ग्रेटर देन 1, फर्स्ट केस, if the scaling parameter is greater than 1, then what will happen? Then ये जो मेरा x of at है, इसका मतलब क्या होगा? Let us say x of 2t, where a equals to 2. So a is greater than 1. So that means ये जो x of 2t है, if you have remember, if you can recall the time scaling of a signal when the scaling parameter is greater than 1, it will give a compressed version of the signal. So that means when a is greater than 1, we will get a time compression. We will get time compression. So we are doing time compression. So इस time compression signal का अगर मैं Fourier transformation कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओमेगा बाई ए. So omega by a जब हो रहा है, so that means we are getting frequency expansion. This is the most beautiful thing. You are doing time compression in the time domain. The Fourier transformation of that compression will be the frequency expansion, because frequency is the inversely proportional to time, f equals to 1 by t. Similarly, आप देखिए यहाँ पे आपका जो x है, यहाँ पे a जो है, a अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी एक्सपेंशन, सॉरी कॉम्प्रेशन. यहाँ पे a अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इट विल बी फ्रीक्वेंसी कॉम्प्रेशन. एंड यू आर डूइंग द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल गेट टाइम. यहाँ पे क्या है? एक्सपेंड. यहाँ पे a अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कॉम्प्रेशन होंगे, तो यहाँ पे होंगे टाइम एक्सपेंशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप टाइम डोमेन पे कॉम्प्रेशन कर रहे हो तो उसका इक्विवेलेंट फूरियर और इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आपका एक्सपेंशन होगा. सिमिलरली इफ यू डू द एक्सपेंशन इन द टाइम डोमेन, देन you will get the compression in the frequency domain. So that means time domain पे आप compression करने, जब compression करोगे तो frequency domain पे आपको expansion होगा. जब आप time domain पे expansion करोगे तो आपका frequency domain पे compression होंगे. So this was the scaling property of the Fourier transform. Now let us take some example. So if we take some example, so let us say we will take one or two examples by which we will go in detail about the scaling property. So the first example looks like this. Suppose example 1, find the Fourier transform of the signal xt where xt is equals to a rectangular small t by capital T. Small t by capital T. You know this is the rectangular pulse. We have to find the Fourier transformation of this. और यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये 2t है, ये 2t है. So a rectangular t by 2 capital T. Now for soluting this, for solution we have to take some reference and we will use the scaling property. Reference क्या है कि we know that if we have a signal a rectangular t by capital T, ये मेरा रेफरेंस सिग्नल है, तो इसको अगर मैं टाइम स्केलिंग करूंगा तो ये वाला मिल जाएंगे. सो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? वी नो द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. ये क्या होगा? साइन ओवर फंक्शन आते हैं और उसके बाद आपका सिंक फंक्शन आ जाएंगे. तो साइन ओवर फंक्शन जो आते हैं दैट इज a इंटू टी एस, ए से साइन ओवर फंक्शन डिवाइडेड बाय ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा कैपिटल टी. ये था आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. इफ यू रिकॉल
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल हाउ इट कम्स, डिटेल में हम लोग एनालिसिस किए थे। अब मुझे क्या करना है, यहां पे टाइम स्केलिंग डालना है, ए रेक्टेंगुलर टी बाई 2t। सो यहां पे अगर मैं टाइम स्केलिंग डालता हूं, सो इट विल बी रेक्टेंगुलर t बाई कैपिटल 2t। इसका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो क्या होंगे? अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू है हाफ है, a का वैल्यू कितना है, स्मॉल a, जो स्केलिंग पैरामीटर था वो हाफ है। सो दैट मीन्स in this case you can see that the small a is equals to half, which is less than 1. that means time domain पे आप expansion कर रहे हैं, you are doing expansion in the time domain. so Fourier transform क्या होंगे? अब देखिए टाइम स्केलिंग में कर रहा हूं तो 1 by mod a, mod a मतलब 1 by half, so 1 by हाफ का मॉड, उसके बाद कैपिटल एक्स ओमेगा बाई ए, तो कैपिटल एक्स ओमेगा बाई ए का मतलब है ये जो है इसके साथ एस ए मतलब साइन ओवर फंक्शन, जहां पे मेरा ओमेगा है उसको मैं ओमेगा बाई ए से रिप्लेस करूंगा, तो ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ओमेगा बाई ए का वैल्यू क्या है, हाफ है, तो यहां पे आ जाएंगे हाफ। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हाफ 2 ऊपर चले जाएंगे, सो 2 इंटू ए टी, अब साइन ओवर फंक्शन, अब इसके साथ ओमेगा बाई 2 है, ओमेगा बाई हाफ है तो ये 2 ओमेगा हो जाएंगे, सो 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा ना। So that means 2 cancel out. So we will get 2 capital A T sine over function omega t, ये वाला। This function will come. Now if you draw this function, अब पहले क्या करते हैं, ये वाले फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, ये दोनों फंक्शन को। So if I draw that function, first of all let us draw कौन सा फंक्शन, ये वाला, that is A रेक्टेंगुलर t बाई कैपिटल T। सो ये आपका एम्पलीट्यूड स्केल और टाइम स्केल पे आपका ये वाला आएंगे। सो ये मेरा टाइम डोमेन पे है। सो व्हाट वी आर डूइंग, ए रेक्टेंगुलर t बाई कैपिटल T। तो इसका जो ग्राफ होता है एक रेक्टेंगुलर फंक्शन होता है, उस रेक्टेंगुलर फंक्शन देखने में कैसे होंगे, आपका जो रेक्टेंगुलर फंक्शन होगा इट विल लुक लाइक दिस। यहां पे आपका मैग्नीट्यूड एट t इक्वल्स टू 0 पे कैपिटल A होंगे, और यहां पे आपका कैपिटल T बाई 2, यहां पे होंगे माइनस कैपिटल T बाई 2। तो इस वाले फंक्शन जो है, इस फंक्शन को जब मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, फूरियर ट्रांसफॉर्म, सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर डूइंग द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छी तरीके से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये t बाई 2, ये माइनस t बाई 2, फूरियर ट्रांसफॉर्म किए मैंने। फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको क्या मिला, एक साइन ओवर फंक्शन मिला। सो लेट अस ड्रॉ द साइन ओवर फंक्शन ऑल्सो। सो इफ आई ड्रॉ द साइन ओवर फंक्शन, दैट मीन्स यहां पे आपका ओमेगा आएंगे, और यहां पे आपका जो फंक्शन आ रहा है दैट इज दिस वन, ए टी साइन ओवर फंक्शन ओमेगा कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट विल बी द फंक्शन, यू नो दैट, एक साइन ओवर फंक्शन। अब साइन ओवर फंक्शन देखने में कैसा होता है, साइन ओवर फंक्शन आपका देखने में कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा होता है। अब t इक्वल्स टू 0 पे, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मेरा वैल्यू क्या होंगे, वैल्यू होगा यहां पे एम्पलीट्यूड at। अब यहां पे देखिए ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए मेरा ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस n पाई। तो इस वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं ओमेगा का वैल्यू क्या होंगे, ओमेगा का वैल्यू होगा प्लस माइनस 2n पाई डिवाइडेड बाई t।
अब n का वैल्यू आप बिठा दीजिए 0 1 2 3 4 0 0 -1 -2 -3 4। तो इस वाले पोजीशन पे मेरा वैल्यू क्या होंगे n इक्वल्स टू 1, सो दैट इज 2 पाई बाई टी। इस वाले पोजीशन पे क्या होगा -2 पाई -2 पाई डिवाइडेड बाई टी। यहां पे क्या होंगे n इक्वल्स टू -2, यहां पे क्या होगा n इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स यहां पे क्या होंगे 2 इंटू 2 पाई बाई टी, यहां पे होंगे -4 पाई बाई टी। इस तरीके से हो जाएंगे। नाउ ये था मेरा पहला वाला केस में। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक्सपेंशन डाला, एक स्केलिंग पैरामीटर लेकर आया। कितना स्केलिंग पैरामीटर किया मैंने, हाफ। दैट मीन्स यहां पे एक्सपेंशन किए मैंने, तो एक्सपेंशन वाला जो ग्राफ होंगे वो कैसा दिखेगा, एक्सपेंशन वाला ग्राफ। एक्सपेंशन वाला ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, मतलब ए रेक्टेंगुलर स्मॉल t बाई कैपिटल 2t, यहां पे t स्केल। नाउ इफ आई ड्रॉ दिस, सो इट विल बी एक्सपेंडेड, ऐसा। एम्पलीट्यूड तो t इक्वल्स टू 0 पे सेम रहेंगे, और यहां पे 0 पे a था, अब ये t बाई 2, मतलब हाफ किया आपने, हाफ मतलब ये हो जाएंगे कैपिटल T, ये हो जाएंगे माइनस कैपिटल T। आप देख सकते हैं टाइम डोमेन पे ये एक्सपैंड हो गया। अब इसका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करूं, इसका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डाल दूं, सो व्हाट विल बी द केस, क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहेंगे। सो दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ, ये अगर ओमेगा स्केल है तो अभी मुझे ड्रॉ करना है ये वाला, दैट मीन्स 2a t साइन ओवर फंक्शन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो इसका जो ग्राफ होगा, दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। You can see that this omega t is right now plus minus in pi. So what will be the value of omega? It will be plus minus n pi divided by t. So इस वाले पॉइंट पे तो आपका 0 है, 0 पे आपका एम्पलीट्यूड क्या है 280। ओके, नाउ यहां पे देखिए ओमेगा जो है, यहां पे ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ये वाले पोजीशन पे, ये वाले पोजीशन पे आपका ओमेगा का वैल्यू क्या होंगे, n इक्वल्स टू 1, मतलब प्लस पाई बाई टी। सिमिलरली इस वाले पोजीशन पे आपका वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाई टी। अब देखो यहां पे 2 पाई बाई टी था, ये कॉम्प्रेस हो गया। सो दैट मीन्स जैसे ही मैंने टाइम डोमेन पे एक्सपेंशन किया, यहां पे क्या किया, एक्सपेंशन, वी हैव डन एक्सपेंशन। तो यहां पे क्या मुझे मिला, यहां पे मुझे मिला कॉम्प्रेशन, we have got the compression. So in this way we can use the scaling, time scaling property to find the Fourier transformation of this signal. इसी तरीके से आप कोई भी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करते हुए कोई भी स्केल्ड वर्जन ऑफ द टाइम डोमेन सिग्नल को आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी विल गो फॉर द सिक्स्थ प्रॉपर्टी।